student, today's topics are mass percentage, empirical formula, molecular formula, chemical equations and limiting reagent based numerical. So first we start by the formula which is known as mass percentage. It gives the mass of each element expressed as the percentage of the total mass. So if you want to calculate the mass percentage of a substance, so the mass percentage of substance is equal to the mass of that element in 1 mole of compound and divided by the molar mass of a compound, then multiply by 100. So in an NCERT book, the question number 1.2 is based on this topic. The question is calculate the mass percentage of different element present in sodium sulfate. So it is clear the sodium sulfate has 3 types of element: sodium, sulfur and oxygen. So there are 2 atoms of sodium, 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen. So first we calculate the molar mass of sodium sulfate. So 2 multiplied by Na because sodium has 2 atoms, 1 multiplied by sulfur because sulfur has 1 atom also, and 4 oxygen of atoms. So the relative atomic mass of sodium is 23. So multiply by 2 multiplied by 23. Sulfur has relative atomic mass 32. So 1 multiplied by 32, and oxygen has relative atomic mass 16. So they have 4 atoms in sodium sulfate. So 4 multiplied by 16. So the mass of the sodium sulfate is 142 gram per mole. So first we calculate the mass percentage of sodium. So mass of sodium in compound of sodium sulfate divided by the molar mass of sodium sulfate and then multiply by 100. So there are 2 atoms. So 2 multiplied by 23 and divided by the total molecular mass which is 142. So the answer is 32.39. The second segment, mass percentage of sulfur. So it has only 1 atom in sodium sulfate. So mass of sulfur in a compound then divided by the molar mass of sodium sulfate. So 1 multiplied by 32 and divided by the 142. So the mass percentage of sulfur in this compound is 22.53%. The third is mass percentage of oxygen. So there are 4 atoms in sodium sulfate. So mass of oxygen in compound of sodium sulfate then divided by the molar mass of sodium sulfate. So 4 multiplied by 16 then divided by 142. So the mass percentage of oxygen is 45.07%. So student, by the this question you can easily calculate the mass percentage. If any question they want to calculate the, for example, calcium carbonate. So you know what, first you calculate the molecular mass, then you divide it by the number of atoms and multiply by the relative atomic mass divided by the total mass and multiply by 100. So easily you can solve this type of a question. अब स्टूडेंट नेक्स्ट थिंग है आपकी एम्पेरिकल फार्मूला. द फार्मूला विच गिव द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड नोन एज एम्पेरिकल फार्मूला. फॉर एग्जांपल इन बेंजीन, तो बेंजीन में आपके 2 एटम्स हैं, 2 एलिमेंट के एटम्स हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के. कार्बन के भी 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स हैं. तो जो उनका रेशियो हुआ वो हो गया आपका इक्वल है 1:1. अब ऐसी बात करिए कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो उनका रेशियो हो गया आपका 1:2. इथेन की बात की जाए तो कार्बन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, तो उनका जो रेशियो आ गया आपका वो आ गया 1:3. एथेनोइक एसिड में CH3COOH, कार्बन के 1 आप देखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो कार्बन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के आपके 4 और ऑक्सीजन के 2. तो इस तरह से जब आप इसको HCF निकालेंगे तो ये आ गया आपका 1:2:1. तो इस तरह की चीजें जहां से बात की जाए रेशियो की कि किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स का, एटम्स का क्या रेशियो है, तो हम उसको सिंपल वे में एम्पेरिकल फॉर्मूला बोल देते हैं. बात आती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की. So the formula which gives the actual number of atoms of various element present in
1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जहां एम्पेरिकल फॉर्मूला में एक सिंपल रेशियो निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऐसा नहीं होता। जो एक्चुअल कंडीशन है वो आपको बतानी होती है। जैसे बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन है और दोनों के 6 एटम है, तो आप 6:6। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 एटम है, ऑक्सीजन 2 है, तो 1:2 होगा। इथेन में 2:6 होगा और एथेनोइक एसिड में आपको लिखना होगा 2:4:2। तो जो रिलेशन है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास को आप अगर उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दें तो आप उसकी एन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। या मॉलिक्यूलर मास हमेशा इक्वल होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को अगर आप एन वाले इंटीग्रल से मल्टीप्लाई कर दें तो। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन में लिया गया है, बेंजीन की एन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो मॉलिक्यूलर मास है बेंजीन का वो आ गया आपका 78 ग्राम पर मोल। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अगर आप देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन है 1:1, तो कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 है, तो आप 12 + 1 यानी 13, तो जो उसकी एन वैल्यू आ गई बेंजीन में वो आ गई 6। तो इजीली अगर आप 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी C/H को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा आपका C6H6 यानी बेंजीन, और इस तरह से उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 78। तो इजीली आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात है इसमें आपकी एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम है आपकी 1.2 जो टोटली आपके इसी टॉपिक से बेस्ड है। क्वेश्चन है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन और ऑक्सीजन आर 69 and 30.1 respectively. Given that molecular mass of iron oxide is 159.8 and atomic mass is जो given है आपका आयरन का 55.85 mu और ऑक्सीजन का 16.0 mu। तो सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन को जो करते हैं, जो हमारे सॉल्व करने का तरीका है, वो आप एक टेबल बनाएं और इस तरह से टेबल के आप जो स्टेप हैं, कॉलम है, वो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सबसे पहले पॉइंट में एलिमेंट्स लिखते हैं, सेकंड पॉइंट में उनका एटॉमिक मास लिखते हैं, थर्ड वाले जो कॉलम में आप उनकी परसेंटेज कंपोजिशन लिखते हैं, फोर्थ वाले कॉलम में आप मोल ऑफ एटम्स निकालते हैं। मोल ऑफ एटम्स को निकालने के लिए आप उनकी परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। फिफ्थ वाला जो कॉलम है आपका वो मोल रेशियो होता है। मोल रेशियो में जो आपका HCF आ रहा हो कॉलम नंबर 4 में यानी मोल ऑफ एटम्स में, उससे डिवाइड कर देते हैं तो मोल रेशियो निकल जाता है। और होल नंबर रेशियो में जो आपके मोल रेशियो में सबसे छोटा नंबर आ जाए उससे डिवाइड कर देते हैं, या जो दोनों की वैल्यू को होल नंबर को डिवाइड करने वाली वैल्यू आ जाए वो उसका एक होल नंबर रेशियो हो जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। तो यहां बात की गई है आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। आयरन का एटॉमिक मास 56 है, परसेंटेज कंपोजिशन 69.9 है, तो मोल ऑफ एटम्स निकालने के लिए 69.9 को आप उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे 56 से, तो ये आ गया 1.25। अब मोल रेशियो निकालने के लिए आप 1.25 को अगर आप दोनों वैल्यू लिखें, वैसे यहां तक आप छोड़ दें, फिर आप स्टार्ट करें ऑक्सीजन से, आप इजीली समझ जाएंगे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, परसेंटेज कंपोजिशन इस कंपाउंड में 30.1 गिवन है आपकी, तो 30.1 को आप उसके मास से डिवाइड कीजिएगा, तो ये आ गया आपका 1.88। अब मोल रेशियो वाले पॉइंट को क्लियर करें। देखिए कॉलम नंबर 4 में यानी मोल ऑफ एटम्स में आयरन की वैल्यू आई 1.25 और ऑक्सीजन की आई 1.88। तो आप देख रहे हैं इसमें जो सबसे कम वैल्यू वो आयरन वाले पॉइंट में है, तो 1.25 जो उसकी मोल ऑफ एटम्स है उसको भी आप 1.25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1.88 को भी आप 1.25 से डिवाइड करेंगे मोल रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि सबसे स्मॉल नंबर जो आया आपके इन दोनों कॉलम में वो 1.25 आया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1.5। इस वाले स्टेप में थोड़े स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जरा मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। जो दोनों यहां तक आप 4 स्टेप तक आप चला करें और जो आपका सबसे सिंपल नंबर आप आ जाए उससे डिवाइड करें। अब नेक्स्ट है आपका होल नंबर रेशियो। तो आपका मोल रेशियो जो आ गया 1 और 1.5 आ गया। अब इनको आप ऐसा नंबर से डिवाइड करें वो होल नंबर में जनरेट कर दे, तो 1 और 1.5 को एक नंबर जो पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है वो है 0.5। तो 1 को आप मोल रेशियो में आयरन वाले पार्ट में अगर 0.5 से डिवाइड करें तो 2 आ गया, और आप ऑक्सीजन वाले पार्ट में अगर आप डिवाइड करें तो आपका 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5 तो 3 आ गया। इस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बना है तो वो बनेगा आपका आयरन के, चूंकि 2
जो एटम्स और ऑक्सीजन के आए 3, तो ये बन जाएगा आपका Fe2O3। तो जो भी आपका होल नंबर रेशियो आ जाए वो आयरन से आप उसको सबस्क्रिप्टेड वाली कंडीशन में लिख देते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास Fe2O3 जो आ गया आपका, आयरन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू आ गई आपकी 159.7 ग्राम पर मोल। अब हमें वो पूछ रहे हैं कि बताइए एन वैल्यू कितनी आएगी। तो मॉलिक्यूलर मास को आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दीजिए। मॉलिक्यूलर मास जो आपका है वो 159.8 है, तो 159.7 जो आपकी वैल्यू आ गई है आपकी कैलकुलेशन से, तो ये इस तरह से 1 आ गई। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा इक्वल होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी जो एन वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। तो Fe2O3 को एन से डिवाइड करेंगे तो ये Fe2O3 आएगा। इट मीन्स कि आयरन ऑक्साइड का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो भी सेम है और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी सेम है। सो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन आप इन कॉलम को याद रखिएगा, मेरा आपको सजेशन है। और ये पूरे के पूरे जो आपके कॉलम हैं इनको दिमाग में रखिएगा। टोटल ये आपके 6 हैं जिन पार्ट को आपको याद रखना है। और जो कंफ्यूज होते हैं आप 4th वाले कॉलम में होते हैं, 4th, 5th और 6th में, इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब बात आती है स्टूडेंट केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट। किसी भी जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है, कितनी मोल वैल्यू है उसकी, उसको बता देना या उसको ठीक से रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि एक मैंने एग्जांपल लिया है कि सल्फ्यूरिक एसिड में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, और सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसी तरह से जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों को मिलाएंगे आपका सोडियम सल्फेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, यानी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी हो जाएगी। तो ये जो है इस तरह से आप देखेंगे, ये वैल्यू आपकी जो हो गई। यहां आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड वर्ड में लिखेंगे या सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो आप क्या करेंगे, आप इसको सिंबल का रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। सो स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि केमिकल इक्वेशन यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड सिंपल वे में। वहां आपको बैलेंसिंग होनी जरूरी है कि कितनी मोल वैल्यू आप यूज कर रहे हैं। अब बात आती है स्टोकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहली बात यह है कि स्टोकियोमेट्री का मीनिंग क्या है। स्टोकियोमेट्री मीन्स द क्वांटिटिव रिलेशनशिप अमॉन्ग द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। तो ग्रीक भाषा में जो वर्ड है स्टोकियन, इसका मीन्स होता है एलिमेंट। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट को करना, मैट्रोन माने मेजर। तो स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड माने ऐसे कंपाउंड जिनमें आपके एटम्स का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं NaCl कहूं तो सोडियम क्लोराइड का मतलब है कि सोडियम क्लोराइड कंपाउंड में सोडियम का भी 1 एटम शामिल है, क्लोराइड का भी 1 एटम शामिल है। तो ऐसे कंपाउंड आपके कहलाएंगे स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। और स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन ए केमिकल इक्वेशन कैन बी इंटरप्रेटेड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जैसे बात करें आप डाई नाइट्रोजन की और आप डाई हाइड्रोजन जो अमोनिया बना रहा है, तो इससे क्या पता लगा आपको, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल शामिल है जो आपके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनाते हैं। नाइट्रोजन यहाँ 1 मोल है, हाइड्रोजन यहाँ 3 मोल है और अमोनिया यहाँ 2 मोल है। बात अगर आप उनकी पार्टिकल्स में करें तो 1 मोल है तो 1 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन 3 मोल है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, और अगर आपका अमोनिया है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे चूंकि 2 मोल है। बात अगर आप उसके मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें तो चूंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 14, चूंकि 40 रिलेटिव एटॉमिक मास नाइट्रोजन का है तो 28 ग्राम आ गया। हाइड्रोजन आप जानते हैं मॉलिक्यूल में चूंकि 2 एटम से मॉलिक्यूल बना रहा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 6 ग्राम आ गया। उसी तरह अमोनिया जो है आपका, अमोनिया को नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन के 3 मिलाएंगे तो 17 हो गया, चूंकि 2 मोल वैल्यू है, 2 मॉलिक्यूल है तो आप 17 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 34 ग्राम आ गया। इस तरह से स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड को आप इजीली उनकी मोल वैल्यू का पता लगा सकते हैं, पार्टिकल्स का पता लगा सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके स्टोकियोमेट्री कहलाती है। अब बात है आपका क्वेश्चन है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन आपकी गिवन है MnO2 + 4HCl फॉर्म MnCl2 + 2H2O + 5Cl2।
तो वो कह रहे हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहाँ मास आपको दिया हुआ मैग्नीज का 55 AMU है, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन 60, हाइड्रोजन आपको मालूम है 1। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप उनकी इक्वेशन लिखिएगा बैलेंस करके, वैसे दी हुई है इसमें गिवन। तो MnO2 चूंकि आप देख रहे हैं 1 मोल है, चूंकि कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 मोल वैल्यू है। हाइड्रोजन क्लोराइड का कोएफिशिएंट 4 गिवन है तो 4 मोल वैल्यू हो गई। बाकी आप देखेंगे यहाँ इतने ही स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप निकालें इनका मोलिकुलर मास। तो MnO2 में मैग्नीज 55 है 1 एटम प्लस ऑक्सीजन के 2 है, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 87 ग्राम आ गया। अब हाइड्रोजन क्लोराइड में आप 1 प्लस 35.5 करेंगे 4 मोल वैल्यू, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 146 ग्राम आ गया। तो हम इजीली करेंगे कि 87 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड 146 ग्राम। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5 ग्राम से रिएक्ट करें तो क्या होगा, तो 5 ग्राम ऑफ Na2 रिएक्ट विद HCl, सिंपली मेथड लगाएंगे। 146 ग्राम को 5 से मल्टीप्लाई करके आप 87 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह से वैल्यू आ गई आपकी 8.3 ग्राम। स्टूडेंट हमारा आज का लास्ट पॉइंट होगा लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट। तो द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड व्हेन अ रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो जब कोई कंपाउंड कोई किसी केमिकल इक्वेशन में या रिएक्शन में उसका टोटली पार्ट कंज्यूम हो जाए तो आप उसको लिमिटिंग रिएजेंट बने, मतलब उसका कुछ भी अमाउंट बचे नहीं तो आप उसको लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट बोलेंगे, यानी वो लिमिटेड अमाउंट में है, ना ज्यादा ना कम, तो वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, रिएक्टेंट है। आपके एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम है 1.4 जो इस पॉइंट पे बेस्ड है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। अगर मान लीजिए 1 मोल कार्बन जल रहा है तो कितना बनेगा, तो कार्बन 1 मोल है और ऑक्सीजन 1 मोल है, तो जाहिर सी बात है CO2 जो बनेगा आपका वो बनेगा 1 मोल ऑफ 44 ग्राम या CO2 बन जाएगा आपका। सेकेंड स्टेप है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो भाई कार्बन का 1 मोल, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे उसका हाफ मोल ही कंज्यूम हो रहा है, और ऑक्सीजन का जो हाफ मॉलिक्यूल यानी 16 ग्राम, चूंकि मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो यहाँ वो 16 ग्राम ही कंज्यूम हो रहा है, कार्बन का हाफ मॉलिक्यूल इसके रेस्पेक्ट में कंज्यूम होगा। तो ये जो CO2 बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी 22 ग्राम यदि आप ऑक्सीजन को 13 ग्राम कर दें, क्योंकि आप देखेंगे पहले वाले में O2 का मतलब है 16 टू द 32 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन के 12 ग्राम से रिएक्ट कर दिए सिंपल भाषा में। तो जब वो 16 ग्राम कर दिया उन्होंने डाइऑक्सीजन, तो जाहिर सी बात है उसी रेशियो में कार्बन भी आपका कम हो जाएगा, तो कार्बन भी 12 ग्राम ना होके सिर्फ रह जाएगा आपका, कहना चाहिए कि उसकी वैल्यू भी कम होगी, हाफ मोल वैल्यू हो जाएगी, तो 6 ग्राम ही कंज्यूम होगा। तो जाहिर सी बात है जब बनेगा जो कंपाउंड वो हाफ मोल बनेगा, तो बजाय 44 ग्राम के वो 22 ग्राम बन जाएगा। स्टूडेंट अब थर्ड सेगमेंट है 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ट इन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन। तो यहां आप देखेंगे 2 मोल क्या, चूंकि 16 ग्राम है यहां भी डाइऑक्सीजन लिमिटेड है जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में लिमिटेड थी, तो ऐसी कंडीशन में 2 मोल भले ही होगा लेकिन उसका कंज्यूम हाफ मोल ही होगा, यानी अगर 16 ग्राम डाइऑक्सीजन दी हुई है तो उसका फिर भी 6 ग्राम पार्ट यानी हाफ मोल पार्ट ही यूज होगा, और इस बार भी जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो 22 ग्राम बनेगी। तो आप देखेंगे थर्ड वाले से आप क्लियर समझ जाएंगे कि आप पे कार्बन ज्यादा एक्सेस है, तो कार्बन एक लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, लेकिन डाइऑक्सीजन लिमिट है वो 16 ग्राम में दिया हुआ है, तो वो एक आपका लिमिटिंग रिएजेंट है या रिएक्टेंट है। सेकेंड वाले में भी आपके पास जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो ऑक्सीजन ही है चूंकि 16 ग्राम है। इस तरह से फर्स्ट वाले में चूंकि 1 मोल ऑफ कार्बन दिया हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो वहां कोई आपका लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, दोनों ही पार्ट आपके कंज्यूम हो जाएंगे। सो स्टूडेंट आई होप कि आप ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।